So in the previous classes we were discussing about a gift of chapels. Today we are continuing the lesson. So in the previous classes we discussed that uh, the cousins Ravi, Lily, Meena, uh, they are playing and discussing so many things, and Lily learning uh, violin with his teacher. And a beggar came to their home, their parents, Pati and Amma, sending the beggar away. So the beggar he uh, cannot go because of the heat or the warm climate, so he rested there we stopped in the previous class. He stretched his feet out to show large pink peeling blister on the sole's bare feet. So उनकी पैर बच्चों को दिखाया, उसमें लाल कलर की बहुत बड़ा ब्लिस्टर्स, तो ये हीट के वजह से उनके फीट के नीचे जला हुआ है वो सोल्स, सब चीज़ बच्चों को दिखाया. I suppose he doesn't have the money to buy chapels, Mrudu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? So मृदु ने बोला, रवि और मीना को बोला कि देखो उनके पास ये चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं है. सो यहाँ पे कोई पुराना वाला किसी का भी चप्पल है तो उनको दे दो. आई डोंट नो, रवि सेड. रवि ने बोला मुझे पता नहीं, माइन आर टू स्मॉल, मेरा तो बहुत छोटा है, टू फिट हिज फीट, और आई वुड गिव हिम गिवन them to him, and his feet were larger than मृदु और मीनास. रवि ने बोला अगर मेरा फिट है उनके फीट को फिट है तो मैं देने वाला था, बट उनका जो फीट है वो बहुत बड़ा है, मृदु से भी बड़ा है और मीना से भी बड़ा है. द बगर वॉज शेकिंग आउट ऑफ हिज अपर क्लॉथ and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. तो बेगर खड़ा रहा और उनके वो वेष्टी, उनके वो धोती, हमने वो लुंगी बोलता है, वो टाइट किया एक बार फिर से, और बाहर देखा, रोड में देखा, तो उनको समझ में आया कि ये आफ्टरनून की हीट वहाँ पे ग्लीम हो रहा है. ग्लीम मीन्स शाइनिंग, शाइनिंग है on the road. He needs something on his feet, Meena said. Her big eyes filling. It is not fair. तो मीना ने बोला, मीना की आंखों में आंसू आ रहा है, और वो बोला कि देखो उनके फीट में हमने कुछ तो कुछ देना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है. रवि सेड, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. रवि ने बोला मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. In 2 minutes he will be frying with his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search in the house. He pushed Mrudu and Meena into the house. तभी ने बोला मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ. अगर वो ये आफ्टर रोड ने रोड पे गया तो उनकी पैर पूरा भी जलने वाला है, तो उसके पहले हम उनको एक पेयर ऑफ चप्पल्स देना पड़ेगा, उनको वही चाहिए. चलो हम अंदर जाके चेक करेंगे, ये बोल के मृदु और मीना को रवि ने पुश किया और अंदर ये दोनों को मृदु और मीना को अंदर लेके गया. Just as she stepped into the veranda, Mrudu's eyes fell on old looking chapels she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जब उन लोग वरांदा में, सिटआउट में, बैकयार्ड में आ गया, वहाँ पे उसने मृदु ने एक चप्पल नोटिस किया और उसने बोला रवि देखो ये चप्पल किसका है देखो. रवि turned and glanced the shabby looking the sturdy old slippers. रवि ने वो पुराना वाला, शैबी मीन्स बहुत ज़्यादा, ये फीट का मार्क्स है, और शैबी लुकिंग वो मार्क्स, फीट का वो मार्क्स आया हुआ है चप्पल में, वो देखा. and beamed and nodded. There is just the right size, he said, picking them up. Mrudu and Meena followed him nervously back into the garden. तो रवि ने वो चप्पल लिया और वापस गार्डन में गया. मृदु और मीना उनके पीछे गया. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed the feet into them, and left, muttering blessing the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. तो रवि बगर को ये चप्पल दिया और बोला ये पहनो और चले जाओ और वापस कभी
नहीं आना। तो ये बगर उनके एक छोटा टॉवल था, वो टॉवल उनकी शोल्डर में डाला और वो चप्पल पहन के रोड में गया। वो जाने के टाइम पे वो बच्चों को ब्लेसिंग भी दिया और 1 मिनट में वो वानिश हो गया, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। Lally, he called after a few minutes. She hurried up. The music master came out of the house and took an unappreciative look at 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for the chappals in the veranda where he had put them. उसके बाद में अब हमारा म्यूज़िक मास्टर बाहर आया और वो हाउस की बरामदा में सब जगह पे उनको ये चप्पल ढूंढ रहा है। ये जो सेम टाइम पे ये मृदु, मीना और रवि, 3 ऑफ देम वे आर प्लेइंग अंडर द ट्री। उन लोग वहाँ पे मार्बल्स खेल रहा था पेड़ के नीचे। लली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। शी हरीड अप हिम। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। और म्यूज़िक मास्टर ने बोला, देखो मैंने मेरा चप्पल यहाँ पे रखा था, वो अभी नहीं दिख रहा है। लल्ली को बुलाकर उनको बोला, देखो मेरा चप्पल यहाँ पे रखा था, वो नहीं दिख रहा है। सो हमको समझ में आया ये चप्पल म्यूज़िक मास्टर की था। वो अभी ये तीनों 3 ऑफ देम, रवि, मृदु एंड मीना, दैट गिवन टू दी बेगर को दिया। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lily and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots. Look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, the cost a while month's fees. Do you know? So, रवि में मृदु, मीना, ये तीनों वहाँ पे चुपचाप सब कुछ देख रहा है और लल्ली और एक म्यूज़िक टीचर ये सब जगह पे ढूंढ रहा है। ये छोटे छोटे प्लांट्स के बीच में, वरांदा में, फ्लावर की पॉट में, सब जगह पे ढूंढ गया। और उसके बीच में ये म्यूज़िक मास्टर बोल रहा है, ये नया था, दैट्स अ ब्रांडेड चप्पल, और चप्पल एक ब्रांडेड कंपनी का था। मैंने ये रोड में पूरा ढूंढ कर वो ब्रांडेड चप्पल लेके आया था। एक्चुअली वो चप्पल बहुत पुराना था, बट ही इज़ पुटिंग सम डिमांड्स। द म्यूज़िक मास्टर पुटिंग सम डिमांड्स। ही वेंट ऑन सेइंग, और उसने फिर भी बोला, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस। डू यू नो? ये चप्पल की पैसा बहुत महंगा है, 1 महीने की पैसा देना पड़ेगा इसे एक चप्पल लेने के लिए। Soon Lily went to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed with the party following her. So Lily अंदर जाके उनकी मम्मी को बोला, और मदर एंड ग्रैंड मदर, रुकुमणी और द ग्रैंड मदर पार्टी, बोथ ऑफ देम के, दोनों भी बाहर आया। वेयर कुड बी दे? वो कहाँ दे? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग। थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। सो मेनी वेंडर्स केम टू दी डोर, वरीड पार्टी। और पार्टी आके बोला कि ये कहाँ रखा था। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, वेंडर्स मीन्स बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए आता है वो जगह पे। सो ये डोर के बाहर रखा तो किसी ने भी चुरा के लेके गया होगा। रुक्मणी caught a sight of Ravi, Mrudu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and seeing them were curiously quiet and went more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line hard formed between eyebrow. Another, straight, tighter one appeared the place her usually soft, pleasant mouth. तो रुक्मणी रवि, मृदु, मीना को, तीनों को भी पूछा कि बच्चों आप लोग ने देखा है क्या, यहाँ पे एक चप्पल रखा था, और उनकी जो आईब्रो है वो एक वी शेप में, विच मीन्स शी वॉज इन एंग्जाइटी। एंड द स्ट्रेट लाइट appeared. Rukmani was angry, thought Mrudu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with the sores on his feet, she tried to tell herself. So, the writer says, अगर रुक्मणी ने वो देखो ये बेगर की पैर देखा और उनकी फीट देखा तो ज़रूर ऐसे कोई
गुस्सा नहीं उड़ाता है. Now she is in very angry. The mother is in very angry. If she saw the feet of the beggar, she would never be angry. She will try to give that chappal to that beggar.